السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے میکرو اکنامکس کے 8th لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا لیکچر بیسیکلی کنٹینیوشن ہے ہمارے پچھلے 2 لیکچرز کی ہی. اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کر لیں. تو جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ٹاپک شروع کیا تھا دیٹ واز دی میئرمنٹ آف دی جی ڈی پی، کہ ہم جی ڈی پی کو کس طرح میئر کرتے ہیں. جب بھی کسی اکانومی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی امپورٹنٹ میئر جو ہے وہ دیٹ از گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ریلیٹڈ میئرز بھی پریویل کرتی ہیں. اس لیے ہم نے پچھلے 1-2 لیکچرز میں یہ بھی دیکھا کہ اس سے ساتھ جو ریلیٹڈ میئرز پریویل کرتی ہیں ان کے کیا ڈیفینیشن ہے یا ان کو کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے جی ڈی پی کی بات کی جو کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ تھی، اور ہم نے یہ کہا کہ جو ڈومیسٹیکلی اونڈ فیکٹرز آف پروڈکشن ہے ان کو یوز کر کے جو ہم ایک ملک میں پیدا کرتے ہیں وہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتی ہے اس ملک کے لیے ڈیورنگ اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. ایٹ ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراس نیشنل پروڈکٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. تو بیسیکلی گراس نیشنل پروڈکٹ جو ہے جی این پی وہ کیا ہے؟ گراس نیشنل پروڈکٹ جو ہے ہماری دیٹ از دی آؤٹ پٹ پروڈیوسڈ بائی دی نیشنلز آف ون پرٹیکولر اکانومی. یعنی ہماری جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے ضروری نہیں کہ وہ ہماری ہی جغرافک باؤنڈری میں فال کر رہے ہوں، بلکہ اف دے آر گوئنگ آؤٹ سائڈ آر کنٹری اور وہاں پہ پروڈکشن کر کے واپس جو ہے ریپیٹریٹ کر رہے ہیں وہ انکم ٹو پاکستان، تو وہ ہمارا گراس نیشنل پروڈکٹ کا حصہ ہوتے ہیں. اگر دونوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے اس کو کمپیئر کرنا ہے گراس نیشنل پروڈکٹ کے ساتھ، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو پیمنٹ کی ہے فیکٹرز آف پروڈکشن کو جو کہ فارن تھے ٹو آر کنٹری، ان کا ڈفرنس ٹو کہ ہمارے نیشنلز نے جو باہر کام کیا ایز اے فیکٹر پروڈکشن، تو ان کو جو پیمنٹ ہوئی اور ہمارے ملک میں آئی وہ کتنی تھی. سو انڈر لائن فیکٹ یہ ہے کہ گراس نیشنل پروڈکٹ میں نیشنلٹی اور دی اونرشپ آف دی ریسورسز از امپورٹنٹ regardless of کہ where they are involved in the production process. جبکہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے اندر ہمارے پاس نیشنلٹی از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، رادر لوکیشن از امپورٹنٹ کہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ود ان آر کنٹری ایگزسٹ کر رہے ہیں ان سے کتنی آؤٹ پٹ ہم نے پیدا کی. گراس نیشنل پروڈکٹ کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ کانسیپٹ جو ہے ہم نے نیٹ نیشنل پروڈکٹ کی بھی بات کی تھی. تو نیٹ نیشنل پروڈکٹ میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم ڈیورنگ دی پروڈکشن پروسیس کیپٹل اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں تو وہ ایک ہی سال کے لیے یوز نہیں ہوتی، بلکہ ایک سال کے اندر اس کی جو یوزیج ہے اس کو ہم اکاؤنٹ فار کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی ڈپریسیشن. تو ہم نے یہ کہا کہ اگر گراس نیشنل پروڈکٹ میں سے ڈپریسیشن مائنس کر دیں تو وہ ہمارے پاس نیٹ نیشنل پروڈکٹ آ جاتی ہے. پھر ہم نے کہا جب نیشنل پروڈکٹ ہو گئی تو اس کو ہم نے کنورٹ کرنے کی کوشش کی ٹو دی نیشنل انکم. اور نیشنل انکم میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس جو نیٹ نیشنل پروڈکٹ آئی ہے اس میں سے ہم انڈائریکٹ بزنس ٹیکسز اگر نکال دیں تو دین وی کم اپ ود دی نیشنل انکم. نیشنل انکم سے جو کہ ہمیں ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ ٹوٹل اکانومی کی انکم کیا ہے. اگر ہم اس سے پرسنل انکم پہ آنا چاہیں تو وی نیڈ ٹو میک سرٹن ایڈجسٹمنٹ، جس کا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ریویو کیا تھا. تو وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہے ہماری ایک طرف تو ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کارپوریٹ پروفٹس آتے ہیں تو کارپوریٹ پروفٹس کو اگر ہم نکال دیں اور ڈیویڈنڈ جو کہ انکم بنتی ہے ہاؤس ہولڈ کی وہ ایڈ اپ کر دیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہم سوشل سیکورٹی کی یا جو بھی کنٹریبیوشن کی ہیں ہم نے وہ سبٹریکٹ کر کے ٹرانسفر پیمنٹس جو ہیں ان کو ایڈ اپ کر دیں، اور فائنلی جو ہماری انٹرسٹ انکم ہے اس کو ایڈ اپ کریں اور نیٹ انٹرسٹ کی جو پیمنٹ ہے ہم اس کو سبٹریکٹ کر دیں. تو دین وی کم اپ ود دی پرسنل انکم. پرسنل انکم کے ساتھ اگر ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کو سبٹریکٹ کر دیں تو دین وی کم اپ ود دی ڈسپوزیبل پرسنل انکم.
یہ تھے کچھ ریلیٹڈ کانسیپٹ. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ریٹ آف انفلیشن کیا ہے, کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی انمپلائمنٹ ریٹ, اور انمپلائمنٹ ریٹ کو ہم نے ریلیٹ کیا ود دی جی ڈی پی گروتھ ریٹ ود دی ہیلپ آف دی اوکنز لا, جس میں ہم نے یہ کہا کہ دیر از اے نیگیٹو ریلیشن شپ بٹوین دی انکریز اور ڈیکریز in the unemployment rate and the growth rate of the GDP. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی ڈی پی کو جب ہم میئر کر لیتے ہیں, اکنامک ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس موجود ہے, تو فردر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپس میں سرٹن ویریبلس کے ریلیشن شپ کیا ہے while we are determining the GDP of a particular economy. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ کہا کہ ہم جب ان کی ریلیشن شپ کو میئر کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ کچھ ماڈل ہونے چاہیے. تو وہ ماڈل جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ان میں کچھ ازامپشنس ہیں, اور ان ازامپشنس کے تحت ہم کچھ فیکٹرز کا انفلوئنس آئسولیٹ کر دیتے ہیں, اور ہم اسٹڈی کرتے ہیں ریلیشن شپ آف دی سم آف دی ادر فیکٹرز. جب ہم ماڈلس کو بلڈ کرتے ہیں, ازامپشنس لیتے ہیں, تو دیر آر سرٹن کائنڈس آف ماڈل. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے جی ڈی پی کی ڈٹرمینیشن میں جب بات کی تھی تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی کلاسیکل ماڈل. وٹ بیسیکلی از دی ایسنس آف دی کلاسیکل ماڈل؟ کلاسیکل ماڈل میں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہماری ویجز اینڈ دی پرائسز جو ہیں وہ فلیکسیبل ہیں, اور وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں ٹل دا ٹائم کہ ہم ایکولیبریم کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ اکانومی کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی ہے, اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ہم چند اگلے آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. لیکن پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ کوشچن جو ہیں, ہم نے کہا کہ جی ڈی پی سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ کوشچن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان میں جو ہے جو کوشچن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اکانومی جو ہے, ہاؤ مچ دی اکانومی شوڈ پروڈیوس, کتنا اس کو پیدا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ونس ہم نے پروڈکشن کر لی ہے تو اس کو جو ہے کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے, یعنی جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کو ڈسٹریبیوشن کس طرح ہونی چاہیے. اور جب ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کرنے ہیں تو دین ود ان دی فیکٹر جو ہے وہ کس طرح سے ہم فردر سیگریگیٹ کریں گے اس انکم کی جنریشن کو. تو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا ایک سمپل کلاسیکل ماڈل کے ساتھ. اس میں ہم نے پہلے کوشچن کو آنسر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے پاس ہاؤ مچ ٹو پروڈیوس کا آنسر ہم دیتے ہیں with two important variables. One is the input levels یا factors of production, اور دوسرا جو ہے ہمارا وہ ہے ہمارا فنکشن, پروڈکشن فنکشن یا پروڈکشن ٹیکنالوجی. ہم نے کہا فار اے گیون ٹائم پیریڈ اگر ہمارے پاس ان پٹس کا لیول جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو, جبکہ ہم نے یہ بھی ازیوم کیا تھا کہ ہمارے پاس صرف دو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے, ایک ہے کیپٹل اور دوسرا ہے لیبر. تو اگر ہمارے پاس کوانٹٹی آف لیبر فار دی ٹائم پیریڈ انڈر انالیسس فکسڈ ہے اور کوانٹٹی آف کیپٹل بھی فکسڈ ہے, تو ہم کتنی آؤٹ پٹ پروڈیوس کریں گے دیٹ از بیسڈ آن دی پروڈکشن فنکشن. اور پروڈکشن فنکشن جو ہے which we commonly write as y is equal to f of k and l, یعنی output is a function of capital and the labor. وہ production function جو ہے وہ reflect کرتا ہے technology of production. ٹیکنالوجی پروڈکشن میں ہمارے پاس دو تین پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وی کین ٹاک اباؤٹ اے پروڈکشن فنکشن وچ ریفلیکٹ انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل, یعنی کہ اگر ہم آؤٹ پٹ کی کوانٹٹیز جو ہیں بڑھا دیں تو ان پٹ کی کوانٹٹیز اگر ہم بڑھا دیں تو آؤٹ پٹ کی کوانٹٹی جو ہے وہ ان پٹ کی کوانٹٹی میں انکریز سے زیادہ بڑھ جائے گی. یعنی اگر ہم ان پٹس کو ڈبل کر دیں تو آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ ول انکریز بائی مور دین دی ڈبل. کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل میں اگر ہم ان پٹ کی کوانٹٹیز کو ڈبل کرتے ہیں تو ہماری آؤٹ پٹ کی کوانٹٹی بھی ایگزیکٹلی ڈبل ہو جاتی ہے. تیسرے میں ہم نے بات کی کہ اگر
डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हों तो इस सूरत हाल में अगर हम इनपुट की क्वांटिटीज बढ़ा दें तो हमारी आउटपुट की क्वांटिटी जो है वो उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी के इनपुट की क्वांटिटी बढ़ी है। तो इन अजम्पशंस में से जो हमने अपने मॉडल के लिए अजम्पशन ली थी दैट वाज अबाउट द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि अगर हम इनपुट्स को डबल करते हैं तो हमारी आउटपुट भी डबल हो जाती है। फॉर अ गिवन प्रोडक्शन फंक्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जो आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं दैट रिफ्लेक्ट्स द सप्लाई साइड ऑफ आवर सिंपल मॉडल। फिर हमने बात की कि हमारा ये जो मॉडल है उसकी डिमांड साइड भी आती है। तो डिमांड साइड में हम ये देखते हैं कि इनकम के जो हैं वो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम जीडीपी पे एक्सपेंडिचर अप्रोच लगाएं तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर में, उसमें अगेन वी केम अप विद द अजम्पशन, और उस अजम्पशन में हमने ये कहा कि हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी। जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी का अदर इकोनॉमीज के साथ इंटरेक्शन नहीं, यानी कि इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम आवर दिस सिंपलिस्टिक मॉडल। क्लोज्ड इकोनॉमी में हम जब Y की बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो देन दैट इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। तो पिछले लेक्चर में हमने जब सप्लाई साइड को कंप्लीट किया उसमें हमने ये बात की कि अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या पेमेंट्स देते हैं, वो फैक्टर की प्राइस कहलाती है। तो जब हम फैक्टर प्राइस की बात करते हैं तो लेबर जो है एज अ वन फैक्टर प्रोडक्शन, उसकी प्राइस जो है दैट इज द वेज रेट। और ये जो वेज रेट है, नॉमिनल वेज रेट को हमने कहा कि दैट इज इक्वल टू W, और उसके साथ हमने डिफाइन किया रियल वेज को। रियल वेज को हमने कहा ये नॉमिनल वेज एडजस्टेड फॉर द प्राइस लेवल, यानी W ओवर P जो है दैट वाज द रियल वेज। फिर हमने कैपिटल की बात की तो हमने कहा कि कैपिटल की प्राइस जो है दैट इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल के, और उसको भी फिर हमने रियल में कन्वर्ट करके कहा कि K एडजस्टेड फॉर द प्राइस, K ओवर P जो है दैट इज द रियल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। तो इसी सिलसिले में जब हम फैक्टर प्राइसेस की डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो जस्ट लाइक द प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर की प्राइसेस भी डिटरमिन होती हैं बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो हमारे इस मॉडल में जब हम लेबर को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, और हमने पिछले लेक्चर में ये देखने की कोशिश की कि लेबर की प्राइस जो है वो किस तरह डिटरमिन होगी। तो लेबर की प्राइस डिटरमिन करने के लिए द सप्लाई साइड ऑफ इट हमने ये कहा था कि फॉर द पीरियड अंडर डिस्कशन अगर हमारे पास लेबर की क्वांटिटी फिक्स्ड है L इज इक्वल टू L बार, तो फिर हमारी सप्लाई जो होगी कर्व दैट विल बी अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, वर्टिकल कर्व। इसलिए अब जो लेबर की प्राइस डिटरमिन होगी दैट विल बी द डिमांड फॉर लेबर, कि डिमांड जो है वो सप्लाई पे इंटरसेक्ट करेगी, तो देन विल टॉक अबाउट द सप्लाई प्राइस फॉर द लेबर। तो इस सिलसिले में हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात की, और उसको हमने ये देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट क्या था, और उसी को मजीद आगे लेके चलते हुए हम डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात करके कंक्लूड करेंगे कि किस तरह लेबर की प्राइस डिटरमिन होती है, और फिर हम बात करेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और ये कैपिटल की प्राइस को किस तरह डिटरमिन करता है। तो आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर ही के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, और उसके बाद फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के बाद हम बात करेंगे कि ये इनकम जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी इकोनॉमी में। जब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट द न्यू क्लासिकल मॉडल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। इसके साथ हमारे इस सिंपल मॉडल का सप्लाई साइड कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन विल मूव टू द डिमांड साइड ऑफ इट।
डिमांड साइड ऑफ द मॉडल की जब हम बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारी नेशनल इनकम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, यानी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी अजम्पशन है, फॉरेन ट्रेड इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट, इसलिए हमारे पास कंजम्पशन इज वन कंपोनेंट, इन्वेस्टमेंट इज अनदर कंपोनेंट एंड देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी द नेक्स्ट कंपोनेंट। तो इन सारे कंपोनेंट से हम शुरू करते हुए इंशाल्लाह आज के लेक्चर में फर्स्ट टू कंपोनेंट्स जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स का है उनको इन डेप्थ देखेंगे एंड अगले आने वाले लेक्चर में इन सारों को कंप्लीट करने के बाद इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट एंड देन इक्विलिब्रियम इन द लोनेबल फंड्स मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो हम अपने आज के लेक्चर से शुरू करते हैं जो कि कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने ये कहा था कि फैक्टर की प्राइसेस जो हैं वो किस तरह डिटरमिन होती हैं। तो हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमारा लेबर है, और उस लेबर में हमने ये कहा था क्योंकि क्वांटिटी ऑफ द लेबर जो है वो अज्यूम की है फिक्स फॉर द टाइम बीइंग, तो इसलिए सप्लाई कर्व जो है वो एक वर्टिकल लाइन होगा। इसलिए जो मेजर रोल प्ले करेगा वो होगा डिमांड फॉर लेबर। तो डिमांड फॉर लेबर के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए था दैट कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, दैट इज द एक्स्ट्रा आउटपुट द फर्म कैन गेट बाय यूजिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द लेबर वेयर आवर कैपिटल इज टेकन एज फिक्स्ड। Marginal product of labor is equal to a production function F using K as the capital and L plus 1 units of the labor minus a production function which gives an output level by using the K units of capital and L units of labor। यानी जब हमने L यूनिट्स ऑफ लेबर यूज की तो हमारे पास एक आउटपुट लेवल आ गया और फिर हमने एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर ली L प्लस 1, लेकिन दोनों ही प्रोडक्शन प्रोसेसेस में हमारे पास K जो कैपिटल है वो फिक्स था, इसलिए वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के साथ जो आउटपुट आई जब हम उसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस आउटपुट के साथ, सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। अब ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर जो है एडिशनल यूनिट के ऐड करने से व्हाट इज द टेंडेंसी कि ये जो है कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी। जिस रेशियो से हम लेबर को बढ़ाएंगे क्या हमारी आउटपुट भी उसी रेशियो से बढ़ती चली जाएगी, यानी कि अगर हम लेबर डबल करें तो आउटपुट डबल हो जाएगी, लेबर को अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो क्या हमारी आउटपुट भी 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी नाउ कि अगर हमारी कैपिटल का लेवल फिक्स्ड रहे और हम लेबर को बढ़ाते चले जाएं तो देन व्हाट विल हैपन टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जिनमें से एक की क्वांटिटी हम फिक्स्ड ले लें, हमारे केस में के कैपिटल के बार फिक्स्ड रहे, और अगर हम लेबर को चेंज करते चले जाएं तो क्या होगा कि हमारी आउटपुट जो है इंक्रीज तो करेगी लेकिन इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रिटर्न। अगर हम आउटपुट में देखें कि अगर हम एक टोटल प्रोडक्शन का कर्व ड्रा करें जिसमें लेबर ले लें एक्स एक्सिस के ऊपर और आउटपुट ले लें वाई एक्सिस के ऊपर, तो जो हमारा आउटपुट का कर्व है इनिशियली आउटपुट इंक्रीज तेजी से होगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज का रेट जो है वो कम हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या वजह है? वजह बेसिकली इज कि जब हमारे पास कैपिटल फिक्स्ड है, मशीनरी हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी थी दैट इज फिक्स्ड, और अगर हम ज्यादा लेबर लगाते चले जाते हैं तो यूटिलाइजेशन जो है मशीनरी की वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती और प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। तो इसी चीज को हमने रिफ्लेक्ट किया है ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। एज अ फैक्टर ऑफ इनपुट इज इंक्रीज, इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स, अदर थिंग्स इक्वल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दैट इंक्रीज इन लेबर while holding K as fixed. What we have is कि fewer machine per worker
and as a result the productivity of the worker will decrease. और इसी चीज को diminishing marginal return के concept को we can also reflect with the help of this particular graph. अब इस ग्राफ में we have taken the units of labor on the x-axis and we have taken the units of output on the y-axis. अब जो हम units of labor बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारी output जो है, unit जो है वो decrease होती चली जाई है और यही declining trend जो है that is the marginal product of labor. Each firm will hire labor up to the point where the marginal product of labor is equal to the real wage rate. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि हम जब भी लेबर को लेना चाहेंगे तो वी लुक एट द कॉस्ट एंड द बेनिफिट. अब कॉस्ट ऑफ द लेबर इज द रियल वेज रेट विच वी आर गोइंग टू पे टू द लेबर. W over P is the cost. अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर बेसिकली इज द बेनिफिट. यानी कि जब हम एक एडिशनल वर्कर जो है वो हायर करते हैं तो वो टोटल आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूट करता है, दैट बेसिकली इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर. जो कि अभी हमने कहा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की वजह से वो जो कंट्रीब्यूशन है वर्कर की वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती चली जाएगी. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि हम कहाँ पे आके जो है वो डिसाइड करेंगे कि इतने लेबर जो है वो यूज करनी है. तो वो पॉइंट होगा जहां पे हमारा रियल वेज ऑफ द वर्कर शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. इसलिए हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर कर्व जो है दैट आल्सो बिकम्स द डिमांड कर्व फॉर द लेबर. क्योंकि जब हमने फैक्टर प्राइस पर्टिकुलरली फॉर लेबर हमने जब डिटरमिन करनी है तो व्हाट वी नीड हियर इज टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस. वन इंफॉर्मेशन इज कि हमारा सप्लाई क्या है. तो सप्लाई में हमने सिंप्लीफाइड अजम्पशन ले ली कि हमने ये कहा कि हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होगी सप्लाई कर्व क्योंकि हमारे पास लेबर की क्वांटिटी फिक्स्ड है. दूसरी तरफ जो हमारी डिमांड साइड है दैट विल बी द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. और वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो हमारे पास एक डिक्लाइनिंग कर्व है और वही डिमांड फॉर लेबर है. अगर हमारी रियल वेज रेट कम होती चली जाएगी तो हम जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिक्लाइनिंग ट्रेंड के साथ उस पॉइंट तक आ जाएंगे जहां पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू द रियल वेज रेट एंड दैट बेसिकली विल बी द पॉइंट. अब इसी तरह हम आते हैं दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन की तरफ और वो है हमारा कैपिटल. और जब हम कैपिटल को एज्यूम कर रहे हैं कि हम कैपिटल को चेंज कर रहे हैं तो हम एज्यूम करेंगे कि लेबर की क्वांटिटी जो है दैट रिमेन्स फिक्स. तो लेट्स लुक एट दिस स्लाइड हियर. वी हैव जस्ट सीन कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू द रियल वेज एंड दैट इज द पॉइंट वेयर वी विल डिसाइड अबाउट कि हाउ मेनी वर्कर्स वी शुड बी यूजिंग इन आवर प्रोडक्शन प्रोसेस. द सेम लॉजिक शोज that our marginal product of capital should be equal to the real rental cost of capital. तो इस सिनेरियो में भी हमारे पास जो कैपिटल का रिटर्न है that will be diminishing. यानी अगर हमारे पास लेबर की क्वांटिटी फिक्स्ड है और हम नंबर ऑफ मशीनरीज बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारी इनिशियली तो हो सकता है कि हमारे पास लेबर है, हम जब मशीन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आउटपुट लेवल बढ़ता चला जाएगा. एक पॉइंट आएगा जबकि मजीद मशीन्स ऐड करने के साथ हमारे पास लेबर की क्वांटिटी कम है, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो कम है, तो मशीन की यूटिलाइजेशन उतनी प्रॉपर या इफेक्टिव नहीं होगी. इसलिए इट विल गिव अस द डिमिनिशिंग रिटर्न टू द कैपिटल. देयरफॉर एज वी इंक्रीज द के मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज. एज अ रिजल्ट हमारा फाइनल पॉइंट क्या होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया लेबर की क्वांटिटी फिक्स्ड है एंड फॉर द टाइम बीइंग जब हम डिमांड फॉर द कैपिटल को देख रहे हैं ड्यू टू द डिमिनिशिंग रिटर्न फॉर द कैपिटल वो भी हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा. अल्टीमेटली हम डिसाइड करेंगे कि हाउ मेनी मशीनरीज टू यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस या कितना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करें. तो दैट इज एट अ पॉइंट जहां पे हमारे पास R over P, then the real rental cost of capital is equal to the marginal product of the capital.
जब हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी हैव एज इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर कि फर्म्स विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय चूजिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल के सच दैट MPK इज इक्वल टू R ओवर P। अब जब हमारे पास फैक्टर की प्राइसेस आ गई, जो कि हमने कहा कि रियल वेज रेट एंड द रियल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल, कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे that is dependent on the marginal product of the labor and the marginal product of the capital। जब हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लेवल आ गया, उनकी वेज रेट्स आ गई, उनकी क्वांटिटीज आ गई, तो वी कैन से कि हमारा आउटपुट लेवल कितना होगा और उस आउटपुट को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी को फर्दर आगे लेके चलते हुए हम जो है बात करने वाले हैं अब कि इस इनकम को किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम के लिए जो हम मॉडल यूज करेंगे, दैट विल बी द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली न्यू क्लासिकल जो है दे आर ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट जो कि ये एज्यूम करते हैं या अदर ये बिलीव करते हैं कि हमारा जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है दैट डिसाइड्स के हाउ मच पेमेंट शुड बी मेड टू दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स, हर फैक्टर की प्राइस जो है दैट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट जो हैं दे एग्री विद दिस न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इस सिनेरियो को लेके चलते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है वो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक है हमारे पास कैपिटल और एक है लेबर। तो पेमेंट टू द लेबर क्या होगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन टू द क्वांटिटी ऑफ लेबर। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने पहले कहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर विल बी इक्वल टू द रियल वेज रेट, इसलिए द टोटल पेमेंट टू द labor will be marginal product of labor into the quantity of labor plus the total payment to the capital will be equal to marginal product of capital multiplied by the quantity of capital। अब हमारे पास possibility does exist कि what if कि हमारे पास जितनी आउटपुट हमने पैदा की, जो कि जीडीपी का एक अदर एस्पेक्ट है कि इनकम अप्रोच भी है, कि जितनी टोटल इनकम हमने जनरेट की उसमें से कैपिटल को पेमेंट करके और लेबर को पेमेंट करने के व्हाट इफ समथिंग इज लेफ्ट, यानी कि वाई माइनस द पेमेंट टू द लेबर माइनस द पेमेंट टू द कैपिटल, इफ देयर इज समथिंग लेफ्ट ओवर, सो दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के, तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट टर्मिनोलॉजीज जो हम कॉमनली यूज करते हैं। उन टर्मिनोलॉजीज में से एक हमारी टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की, दूसरी है हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट की, और तीसरी है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स की। तो इन्हीं 3 चीजों को या 3 कॉन्सेप्ट्स को फर्दर जब हम एलैबोरेट करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। तो इसमें हम एक बिजनेस को एज्यूम करते हैं इन द रियल लाइफ सिचुएशन कि बिजनेस इज यूजिंग सर्टेन प्रोडक्शन प्रोसेस और उससे कुछ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करती है और उस आउटपुट को सेल करती है इन द मार्केट प्लेस। तो बिजनेस के पास 3 मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक कंपोनेंट है हमारे पास रेवेन्यू या सेल्स का। उस सेल्स में से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग दैट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेलिंग, एडमिन एंड द अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस। और ये हमारे पास आते हैं बेसिकली अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या हमने रिकॉर्ड रखा, हमने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कितनी आई, रेवेन्यू कितने हुए,
اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایکسپینڈیچرز کتنے ہوئے, اور نیٹ بینیفٹ جو ہے فرم کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے وہ کتنا ہوا اکارڈنگ ٹو دی ٹرانزیکشنز جو ہم نے بکس میں ریکارڈ کی. دیٹ از نون ایز دی اکاؤنٹنگ پروفٹ. اب اکاؤنٹنگ پروفٹ میں ہم صرف جو ہم نے پیمنٹس کی ہیں اور جن کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے, جو رسیٹس ہمیں آئی ہیں اور جن کا ریکارڈ موجود ہے, ان کا ڈفرنس از دی اکاؤنٹنگ پروفٹ. جبکہ جب ہم نارمل پروفٹس کی بات کرتے ہیں ایز پر دی اکانومسٹ ڈیفینیشن, تو ہمارے پاس جو ہیں 3 طرح کے پارٹیسپینٹس ہیں ان دا بزنس. ایک ہے ہمارے پاس لیبر, دوسری ہے مشینری اینڈ دی ادر کیپٹل, اینڈ دین دیر از اندر پرسن نون ایز دی انٹرپرینور, دی ون ہو مینیجز دی شو. اس لیے لیبر کو پیمنٹ ہم کرتے ہیں ویج کی شکل میں, کیپٹل کو ہم پیمنٹ کرتے ہیں ان دا فارم آف دی رینٹ اور دی انٹرسٹ پیمنٹس, اور تیسرا جو انٹرپرینور ہے جو کہ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہے, اپنی ایکسپرٹیز جو ہے بزنس کو دے رہا ہے, اس کی پیمنٹ جو ہے دیٹ از دی نارمل پروفٹ. اور اس نارمل پروفٹ کا بیسیکلی جو ہے ریکارڈ جو ہے ہماری بکس آف اکاؤنٹس میں ایز سچ نہیں ہوتا, لیکن اکانومسٹ اس امپلیسٹ کاسٹ کو بھی شامل کرتے ہیں اپنی ٹوٹل کاسٹ میں. اسی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو تیسرا کانسیپٹ ہے وہ ہے اکنامک پروفٹس کا. تو اکنامک پروفٹس جو ہیں دے ول بی ایکول ٹو وائی مائنس دی پیمنٹ ٹو دی لیبر مائنس دی پیمنٹ ٹو دی کیپٹل. اب اس کیپٹل کے اندر ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ اونر آف دی کیپٹل ہیز بین کمپنسیٹڈ. اسی کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ کہ ہاؤ انکم از ڈسٹریبیوٹیڈ ایز پر دی نیو کلاسیکل ماڈل. Total labor income should be equal to the real wage rate W/P times L bar, the quantity of labor which is fixed. In equilibrium آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا کہ real wage جو ہے which is the cost of the labor should be equal to the benefit of the labor which was the marginal product of labor. Therefore اس سلائڈ کو جب ہم کہتے ہیں کہ W/P into L bar, ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ دیٹ از آلسو اکول ٹو کہ مارجنل پروڈکٹ آف لیبر انٹو ایل بار اور دی کوانٹٹی آف دی لیبر. سو دس از دی ٹوٹل پیمنٹ ٹو دی لیبر. دوسرا جو ہمارا فیکٹر پروڈکشن تھا دیٹ واز کیپٹل. تو کیپٹل کے سینیریو میں بھی ٹوٹل کیپٹل انکم از اکول ٹو دی ریئل رینٹل کاسٹ آف کیپٹل انٹو دی کوانٹٹی آف کیپٹل کے بار. ایکولیبریم میں ہم نے یہ کہا real rental cost of the capital is also equal to the marginal product of capital. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ marginal product of capital into K bar. یہ تو ہوگی ہمارے پاس payments to the factors of production. There is a possibility کہ Y minus the payment to the labor plus what we have paid to the capital is some positive number. اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نیشنل انکم میں سے دی انکم وچ وی ہیو ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دی لیبر اینڈ دی کیپٹل وہ سبٹریکٹ کرنے کے بعد دیر از سم پازیٹو نمبر, سو دیٹ نمبر از آر اکنامک پروفٹس. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو پروڈکشن فنکشن ہے ہم نے ایزیوم کیا کہ دیٹ از کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل. In case of the constant return to scale production function, ہمارے پاس جو سینیریو ڈیولپ ہوگا that is reflected on this slide here. کہ if the production function has constant return to scale, then Y bar, which is the national given income, is equal to the labor income, which is marginal product of labor into a fixed quantity of labor plus the marginal product capital into fixed quantity of capital. تو اگر کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ہو گئے ہمارے ان پروڈکشن تو دین ہمارے پاس اکنامک پروفٹس جو ہیں وہ زیرو ہوں گے. اب ہم اپنے بیسک ماڈل کو تھوڑا سا ریفر بیک کرنا چاہیں گے کہ انیشلی ہم نے ایک سمپل ماڈل ایزیوم کیا تھا جس میں ہم نے کلوزڈ اکانومی لی تھی, اور اس کلوزڈ اکانومی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر ول بی اے ڈیمانڈ سائڈ اینڈ دیر ول بی اے سپلائی سائڈ. تو ابھی تک ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم نے سپلائی سائڈ سے شروع کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں کور اپ کر لی ہیں اینڈ دین فرام دیئر ویئر وی ہیو ٹو موو فردر.
So as is reflected on this particular slide, we had a closed economy market clearing model, क्योंकि हम assume कर रहे थे कि classical हमारा model है. तो supply side पे what we have done or what we have discussed is the factor markets, कि factor markets में उनकी supply क्या होती है, उनका demand curve क्या है और उनकी price level क्या है. कि हमने ये कहा कि हमारे factors की supply fixed है, इसलिए उनकी प्राइसेस जो हैं दे विल बी बेस्ड ऑन द डिमांड साइड, जो कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेंगी. फिर उसके बाद दूसरा जो है, हमने दूसरा टॉपिक जो अब तक कवर किया है एज इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट एंड द इनकम. यानी अगर फैक्टर की प्राइसेस हमें पता चल जाएंगी तो देन विल टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट लेवल और द इनकम लेवल और द जीडीपी. अब हम ये देखते हैं कि फ्रॉम हियर के सप्लाई साइड को कवर करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब हमने किस तरफ मूव करना है. तो अगेन ऑन दिस क्लोज्ड इकोनॉमी मार्केट क्लियरिंग मॉडल वी हैव टू नाउ स्विच टू द डिमांड साइड, एंड दिस डिमांड साइड डिस्कशन जो है दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप. तो डिमांड साइड में सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, तो हमारे पास जो है वो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का रोल जो है वो दैट विल नॉट बी देयर. हम जो है सिर्फ एग्रीगेट डिमांड जो है उसको देखेंगे, तो उसमें जो कंपोनेंट्स कंसीडर करेंगे वो होगा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग. यानी कंज्यूमर्स वहां होंगे, इन्वेस्टमेंट का फर्म एंड कंज्यूमर के साथ पार्टिसिपेशन आएगी, एंड देन द गवर्नमेंट साइड में हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड द टैक्सेस. एंड फ्रॉम देयर वंस वी कंप्लीट द डिमांड साइड विल टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम. और वो इक्विलिब्रियम जो है दैट इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई साइड, और उसमें हम देखेंगे इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट और हम देखेंगे इक्विलिब्रियम इन द लोनेबल फंड्स मार्केट. तो हम शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन फ्रॉम द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब क्लोज्ड इकोनॉमी है, जैसे कि अगर हम पहले कहें तो हमने ये कहा था कि टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल इनकम दोनों ही अप्रोचेस को यूज करते हुए हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम आएगी. और उसमें हमने ये कहा था कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. अब जब हम इस सिंपल मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखना चाह रहे हैं सर्टेन वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं. इसलिए हम फॉर द टाइम बीइंग जो है वो ओपन इकोनॉमी की अजम्पशन को ख़त्म करके क्लोज्ड इकोनॉमी की अजम्पशन लेके चलेंगे, और उसमें हम जो कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी कंजम्पशन विच इज कमिंग फ्रॉम द कंज्यूमर्स, इन्वेस्टमेंट्स विच इज कमिंग फ्रॉम बोथ कंज्यूमर एंड द फर्म्स, एंड देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रॉम द कंजम्पशन. कंजम्पशन को हम रिफ्लेक्ट करते हैं विद द कैपिटल लेटर सी. अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो हम ये कहेंगे कि कंजम्पशन जो है बेसिकली दैट इज द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज which is coming from the consumers of a particular society. In most of the economies, हमारा aggregate demand का major portion जो है that is our consumption demand. पाकिस्तान के point of view से देखें तो भी हमारी consumption demand जो है that is a significant portion of our total aggregate demand. जब बात करते हैं कंजम्पशन की विच इज रिफ्लेक्टिंग द कंज्यूमर्स, तो अगेन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. अगर हम भी देखें अपनी डेली लाइफ में, एक है हमारे कंजम्पशन ऑन द नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी डेली यूजेज की जो चीजें हैं जो हम कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर जो कंजम्पशन है दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ द कंजम्पशन फ्रॉम द कंज्यूमर. देन इज द कंजम्पशन ऑन द ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स में हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं कि जो कि हम कंज्यूम करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ जाते हैं और जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्स एंड द अदर कंप्यूटर्स एंड द अदर इक्विपमेंट्स. और उसके बाद जो हमारी तीसरी कैटेगरी है दैट इज द
expenditure, consumer expenditure on the services. Services में हमारे पास आ जाती है services of the hair cutter, barber, services of the laundry person, or the banking services, or the airline services, or any other kind of service. अब ये जो consumer है, इसकी consumption is dependent on the disposable personal income. अगर आप कोशिश करें रिकॉल करने की, तो जब हमने पर्सनल इनकम की बात की थी तो हमने कुछ एडजस्टमेंट्स की थी इन आवर नेशनल इनकम एंड देन वी केम अप विद द पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्सेस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, देन वी कम अप विद द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम. तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है दैट इज द वन जो डिसाइड करती है कि हमारी कंजम्पशन कितनी होगी एज ए कंज्यूमर, क्योंकि ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है वो कंपोनेंट ऑफ द इनकम है विच इज एट द डिस्पोजल ऑफ द कंज्यूमर. और कंज्यूमर ने उसको या स्पेंड करना है या उसको सेव कर देना है. सर्कुलर फ्लो डायग्राम में भी जब हमने हाउस होल्ड को एज वन ऑफ द एक्टर और प्लेयर डाला था तो हमने कहा था कि हाउस होल्ड जो है जो इनकम जनरेट करता है बाय सेलिंग देयर सर्विसेज एज लेबर और प्रोवाइडिंग देयर कैपिटल टू द बिजनेसेस, उससे जो इनकम मिलती है एज अ पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उस इनकम में से एक पोर्शन जो है वो कंजम्पशन पे लगा देता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एक पोर्शन जो है वो सेविंग करता है एंड दैट सेविंग जो है दैट फ्लोज टू द फाइनेंशियल मार्केट. और उसके साथ साथ टैक्सेस जो है दे फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट. इसलिए जो टोटल इनकम है हाउस होल्ड के पास, उसमें जब हम टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डिस्पोजेबल इनकम है, जिसमें से एक पोर्शन कंज्यूमर ने गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करना है और एक पोर्शन जो है वो सेव करना है. तो इसको हमने इस स्लाइड पे रिफ्लेक्ट किया है. वी आर सेइंग डिस्पोजेबल इनकम इज द टोटल इनकम minus our total taxes, y minus t, and but basically is our consumption function कि how much do we consume is dependent on the disposable personal income. यानी C is equal to C of y minus t, और y minus t को हमने पहले ही डिफाइन किया है as a disposable personal income. अब हम ये देख रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन the disposable personal income and the consumption. पॉजिटिव होना चाहिए या कि नेगेटिव होना चाहिए. तो ये रिलेशनशिप इंट्यूटिवली स्पीकिंग जो है, अगर हम खुद अपने बिहेवियर को एनालाइज करें कि अगर हमारे पास ज्यादा अवेलेबल होगा आफ्टर पेइंग द टैक्सेस तो क्या होगा, हमारा कंजम्पशन ऑन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस, ईदर ऑल ऑफ द कैटेगरीज और सम ऑफ द कैटेगरीज जो है वो बढ़ जाएगा. So we say there is a positive relationship between the disposable personal income and the consumption. अब इस consumption में हमने कहीं भी ये specify नहीं किया कि किस कैटेगरी में है, we are just taking the lump sum. अब इसी consumption function को, which is the relationship between the disposable personal income and the consumption, we can express with the help of a graph. लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लेन करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. जैसे मैंने कहा इनकम बढ़ेगी तो हमारे पास टेंडेंसी होगी कि हम जो है अपनी कंजम्पशन को बढ़ा दें. अब $1 इनकम बढ़ने से हमारी कंजम्पशन कितनी बढ़ती है? अगर $1 बढ़ती है और उसमें से हम 70 सेंट्स जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देते हैं और 30 सेंट सेव करते हैं, तो वो इंक्रीज इन द कंजम्पशन ड्यू टू द इंक्रीज इन इनकम इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. हाउ डू वी डिफाइन इट? वी से द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द इंक्रीज इन कंजम्पशन caused by 1 unit increase in disposable income.
अब इसी रिलेशनशिप को बिटवीन द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम एंड कंजम्पशन वी कैन रिफ्लेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ. ये ग्राफ बेसिकली हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या है, व्हाट वी हैव टेकन ऑन द एक्स एक्सिस इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम व्हिच इज y minus t. On the y-axis, we have taken the consumption expenditure, all categories. And then we see that this graph here is starting from an intercept, or that intercept is on the y-axis, which reflects कि अगर हमारे पास disposable personal income जो है वो zero भी हो तो there will be a certain level of consumption, क्योंकि हम इसको y-axis से शुरू कर रहे हैं कि अगर इनकम डिस्पोजेबल इनकम जीरो भी है तो हमारा कंजम्पशन लेवल जीरो नहीं है, वी हैव सम पॉजिटिव कंजम्पशन. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि देयर आर सम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वेदर वी हैव द डिस्पोजेबल इनकम और नॉट, वी नीड टू कंज्यूम दोज गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल फूड एंड क्लोथिंग, बेसिक बेयर मिनिमम. तो वो बेयर मिनिमम के ऊपर हमारी वो कंजम्पशन जो है वो एग्जिस्ट करती है. जब फर्दर हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि इसके लिए हम कहां से जनरेट करते हैं, तो विल टॉक अबाउट द सेविंग की बजाय डिससेविंग की बात है कि वी विल बोरो फंड्स इन ऑर्डर टू मीट दैट एक्सपेंडिचर. द कंजम्पशन फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, जो कि हमें ये बताता है कि जो इनकम बढ़ती चली जाती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. द स्लोप ऑफ दिस कंजम्पशन फंक्शन इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. 1 unit increase in disposable income increases our consumption by how much? That is the marginal propensity to consume. ये है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन. Now we move to the next component, which is the investment. So investment reflected as capital letter I. It comes from the businesses and it also comes from the household. Business investment में हमारे पास आता है business fixed investments. Household से हमारे पास आता है residential fixed investments. कि अगर हम in the construction of the houses spend करते हैं, landlords and the consumers, then that is business fixed investments. उसके साथ साथ change in inventory जो है, businesses जो है जब inventory बढ़ाती हैं, that is considered as an investment which is coming from the businesses. अब हम ये देखना चाहते हैं कि investments behind the scene क्या चीज investment के पीछे है, investment किस चीज से determine होती है. तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो बेसिक डिटर्मिनेंट है, जैसे कि हमने कहा था कि कंजम्पशन के लिए डिस्पोजेबल इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेसिक डिटर्मिनेंट है दैट इज द इंटरेस्ट रेट. अब इंटरेस्ट रेट जो है वो किस तरह इन्वेस्टमेंट को डिटर्मिन करता है कि जब हम बात करते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स की, तो बिजनेसेस या फर्म्स जो हैं वो ये देखेंगी कि अगर उन्होंने कोई प्लांट या इक्विपमेंट परचेज करना है तो उसको परचेज करने के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है. तो कॉस्ट ऑफ फंड बेसिकली इज द इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो एक्सपेंसिव हो जाएगा. अब बिजनेसेस जो हैं वो कंपेयर करेंगी इस कॉस्ट ऑफ फंड को विद द रेट ऑफ रिटर्न दे आर अर्निंग. दूसरी तरफ जो हमारे हाउस होल्ड होंगे वो भी कंपेयर करेंगे कि अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके ऊपर उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है. अगर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, या जैसा कि आजकल चल रहा है परचेज ऑफ द कार, अगर जो है फंड जो है दे आर अवेलेबल एट द लोअर इंटरेस्ट रेट, तो देन क्या होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन द रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड द परचेज ऑफ द कार एंड अलाइक जो है वो बढ़ जाएगी. To sum up, we can say the investment function as is reflected on this particular slide, capital letter I is a function of R, where R denotes the real interest rate. And what is the real interest rate?
कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि जब हम बात करते हैं रियल सेंस में इन्वेस्टमेंट की तो देन इट शुड बी रिलेटेड टू द रियल इंटरेस्ट रेट। जो हमारे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं दे आर द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रिलेशनशिप क्या है? देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द रियल इंटरेस्ट रेट। इफ रियल इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज देन आवर इन्वेस्टमेंट्स विल फॉल एंड वाइस वर्सा। तो इसी रिलेशनशिप को हम एक प्रोडक्शन फंक्शन के रिलेशनशिप को एक ग्राफ की मदद से भी शो कर सकते हैं। द इन्वेस्टमेंट फंक्शन which reflects the spending on investment goods is a downward sloping function of the real interest rate. अगर हम x एक्सिस पे I लेते हैं, y एक्सिस पे रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि रिलेशनशिप इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली अभी तक जो है वो दो कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड जो है वो कवर किया है, कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट्स। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर कंक्लूड करें, मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया जाए। तो आज के लेक्चर में हमने बात की कि हाउ द इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में हमने न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लिया और कहा कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर जो है इनकम मिलेगी। और अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारे प्रोडक्शन फंक्शन जो है दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो सूरत हाल में टोटल इनकम विल बी इक्वल टू द पेमेंट टू द फैक्टर प्रोडक्शन लेबर प्लस द पेमेंट टू द फैक्टर प्रोडक्शन विच इज कैपिटल। अगर हमने अज्यूम किया था कि देयर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल, इसलिए लेबर की इनकम प्लस कैपिटल की इनकम विल बी इक्वल टू द टोटल इनकम if we have the constant return to scale in production। फिर उसके बाद हमने ये सप्लाई साइड हमारी कंप्लीट होगी मॉडल की, फिर we started with the demand side of the model। और डिमांड साइड में जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास जो है क्लोज्ड इकोनॉमी का सिंप्लीफाइड मॉडल है, इसलिए हमारे एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं दे विल बी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो आज के लेक्चर में हमने कंजम्पशन की बात की और हमने ये कहा कि कंजम्पशन जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम एंड द रिलेशनशिप इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। फिर हमने बात की इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स हमने कहा इज अ फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप जो है दैट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कम हो जाएंगी एंड वाइस वर्सा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एग्रीगेट डिमांड ही के डिस्कशन को जारी रखते हुए बात करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, और उस बात करने के साथ हमारी डिमांड साइड भी कंप्लीट हो जाएगी फॉर आवर सिंपलिस्टिक मॉडल। और फिर हम डिमांड और सप्लाई साइड को इकट्ठे करते हुए इक्विलिब्रियम कंडीशंस को देखेंगे इन दी गुड्स मार्केट और फाइनली जो है लोनेबल फंड्स मार्केट में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर तलत अफजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।